हेलो बच्चों, we are going to start equation of motion by the graphical method. Before going improving, first we will discuss about the notations used in the equation of motion and number of equation of motion. See, first we will discuss for the notation. This is a small u. It is used for the initial velocity. It is initial velocity. Okay, remember it. V, small v is used for final velocity. Final velocity. T is for the time. A is used for acceleration, and S, here we use the term S for the distance. Okay, it is used for the distance. So these are the variables we are going to use inside the equation of motion. Small v for initial velocity, small v for final velocity, T for time, A for acceleration, and S for the distance. Okay. Now see, there are three types of equation of motion. First, we will discuss these three types. First equation of motion is V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion. Second equation of motion is S equal to UT plus half AT square. This is the second equation of motion. Okay. We have discussed about the notations, है ना? S means distance, U means initial velocity, T means time. Okay. Third equation of motion is V square is equal to U square plus 2AS. Na? There are three types of equation of motion, and we have these relations. Now we are going to start the proving of equation number 1. Okay. To prove these equations of motion, we are going to use the graphical method. So first we will discuss about this graph. What is showing in this graph? See, in this graph, one object is moving at initial velocity u. See, it is the initial velocity u at point A. When any object is observed, जब किसी ऑब्जेक्ट को देखा गया उस समय जो उसकी वेलोसिटी थी उस टाइम वो इनिशियल वेलोसिटी थी u. आफ्टर टाइम t, देखो o से c तक ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है. आफ्टर टाइम t the final velocity of the object is v. देखो यहाँ पर क्या लिखा है, it is v, है ना. at point p जो उसकी वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई, v हो गई. ओके, so that means the initial velocity of the object at point A is u and the final velocity of object at point E is v. अच्छा, ये जो u से v velocity change हो रही है इसमें टाइम कितना लग रहा है? See, it's time taken t second ना. देखो यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, it is t. Okay, now one thing we have discussed in previous classes, acceleration. Okay, आपको याद होगा क्या क्या था acceleration? Yes, acceleration क्या था? Acceleration is equal to change in velocity upon time. Okay, now to prove the first equation of motion we will use this relation x for the acceleration. Okay, see, the first equation of motion is going to prove the first equation of motion. The first equation of motion. So how we will prove the first equation of motion? See, we know that acceleration is equal to change in velocity upon time, है ना. That means acceleration is equal to change in velocity. It is change in velocity upon time. Now what symbol we will use for acceleration? Yes, a is equal to, now see what is the change in velocity. पहले velocity कहाँ क्या था, u था ना. at point A velocity is u and at point B जो velocity हो गई v हो गई. that means हम लोग को ये डिफरेंस चाहिए ना, ये डिफरेंस आपको चाहिए. this is the change in velocity. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्राफ
ग्राफ के लिए देखो O से E का लेंथ ले लेंगे और माइनस कर देंगे O से A का लेंथ, तो दैट मींस O से E ग्राफ पे वैल्यू भी मिल रही है और O से A का जो लेंथ होगा वो U हो जाएगा ना। तो दैट मींस फ्रॉम द ग्राफ वी कैन राइट OE, दैट मींस फ्रॉम हियर टू हियर, माइनस इसको माइनस कर दो OA डिवाइडेड बाय जो टाइम चेंज हो रहा है O से C तक हो रहा है, इट इज OC। नाउ A इज इक्वल टू OE, तो OE is V, है ना, in final velocity it is, and minus OA is U, which is initial velocity at point A upon OC कितना आ रहा है इसमें T। Now solve it, T को इधर ले लेते हैं, AT is equal to V minus U, और ये जो U है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो V is equal to हो जाएगा U plus AT। This is the first equation of motion। ओके, इजीली यू कैन प्रूव इट। देखा कितनी आसानी से आपने इसको प्रूव कर लिया। यू नो द रिलेशन फॉर एक्सेलरेशन एंड चेंजिंग वेलोसिटी विद टाइम। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन we use one concept we have discussed in the previous lectures। क्या डिस्कस किया था कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट, तो हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस इन टाइम वेलोसिटी ग्राफ, याद है? सी, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ के नीचे जितना ये एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करेगा, दैट मींस AB जितना एरिया कवर करेगा विद एक्स एक्सिस, दिस इज नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग OABDC, इस एरिया को कैलकुलेट करने पे जो रिजल्ट होगा इट विल इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सी फॉर द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन what you will do, you will use the same concept। चलो अभी हम लोग क्या लेते हैं, distance covered by the object is equal to area of A, OA, B, D and C। okay, write down distance covered by object is equal to area of OA, B, D and C। okay, that means we are going to find the area of this portion ना। तो आपको जैसे पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अब इसका एरिया कैलकुलेट करना तो यू हैव टू वेज। एक तो आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल लेके कैलकुलेट कर सकते हो, और अनदर वे क्या है, इसको ट्रापेज़ियम भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अलग अलग कर लेते हैं, रेक्टेंगल और ट्रायंगल से कर लेंगे। ऑन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग एरिया ऑफ ट्रापेज़ियम ले लेंगे। we can use both of the relation। okay, now the distance, तो डिस्टेंस के लिए नोटेशन क्या लिया है आपने, s। तो s is equal to एरिया ऑफ OABDC, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, एरिया ऑफ OADC। नाउ एरिया ऑफ OABC प्लस एरिया ऑफ AB एंड D। देखो यहाँ पे ये अलग कर लिया और ये पोर्शन अलग कर लिया। ओके, नाउ दिस इज द रेक्टेंगल और दिस इज द ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट लगा लेंगे। ओके, नाउ फॉर दिस रेक्टेंगल एरिया ऑफ OABC, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इज OC and breadth is, that means this OA। okay, plus area of triangle ABD, तो देखो ABD ट्रायंगल है तो इसका एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस देखो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा ना, दिस AD, तो AD इनटू और आपका जो हाइट है वो हो जाएगा BD। ओके, नाउ OC, देखो OC का लेंथ जो है किसके इक्वल आ रहा है, OC का जो लेंथ है इट इज इक्वल टू द
टाइम ना, टाइम टी के इक्वल आ रहा है, दैट मींस इट इज टी। और ओ ए, देखो ओ ए क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ u है ना, ये जो मेजरमेंट होगा वो u को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो ओ ए का जो लेंथ है इट इज u प्लस हाफ ad। तो देखो ad यहां से यहां तक का लेंथ है, दिस इज इक्वल टू oc। तो अगेन इट विल इक्वल टू टाइम, जो ad होगा ये टाइम t के तो इक्वल होगा, तो दैट मींस इट इज t एंड bd। तो देखो bd जो है ये bd, तो bd इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द वेलोसिटीज ना। देखो यहाँ पे bd जो है वो a e के ही तो इक्वल आ रहा है, और a e अभी निकाला था फर्स्ट रिलेशन के लिए व्हिच इज v माइनस u। तो a e निकालने के लिए आपको क्या लिखना होगा, o e माइनस o a। तो इट विल बी o e bd, दैट मींस वी कैन राइट v माइनस u, v माइनस u। हाउ, सी फॉर दिस a e फर्स्ट यू विल फाइंड OE minus OA, ठीक है। we can write here कि AE is equal to OE minus OA। OE देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, V है, तो V minus ये लेंथ कितना है, U है, it will be V minus U। now solve it, S is equal to a UT plus half AT square ना। तो see this time we have V minus U, तो v की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को पुट कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, s इज इक्वल टू ut तो मिल गया, प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए ना आपको। तो जो bd है, तो bd में यहाँ पर आपको a चाहिए ना, मतलब bd की जो वैल्यू आप लेंगे v माइनस u, उसकी जगह आपको एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो t से डिवाइड कर देंगे, तो जब v माइनस u बाई t होगा तो विच इज द एक्सेलरेशन, और t से यहाँ प्रोडक्ट कर देंगे फॉर बैलेंसिंग। तो सी वी कैन राइट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, देखो यहाँ से कर दिया t स्क्वायर, दैट मींस ये जो t है उसको स्क्वायर कर दिया, इट मींस इट हैज 2 टाइम्स t, और इनटू हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। इज इट क्लियर ना, कि यहाँ v माइनस u के अपॉन में t अपने से लगाया, ठीक है, v माइनस u के अपॉन में t लगा दिया खुद से, और एक t से इसमें प्रोडक्ट कर दिया, तो ये t स्क्वायर हो गया। देखो t से ये t कैंसिल हो गया, सेम आ जाएगा, रिजल्ट तो वही आ जाएगा जो ऊपर लिखा है। बट इफ यू विल डू लाइक दिस, तो v माइनस u अपॉन t को आप क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ, देखो इससे रिजल्ट आएगा a इज इक्वल टू a t स्क्वायर, ओके। s is equal to ut plus half at square, we can write here where a is equal to v minus u upon t, okay। it's very easy to prove, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को आ गया होगा। only you will find the area for this portion to find the distance, और जब एरिया निकालने जाओगे तो according to the graph जो भी टर्म्स है वो टाइम का है, वो वेलोसिटी का है, सब्स्टिट्यूट करते चले जाओ, you will get the second equation of motion। now we will do the same thing for the third equation of motion। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम लोग डिस्टेंस को ही लेके चलेंगे, और इस बार सेम फार्मूला भी यूज करके कर सकते हैं, और अनदर फार्मूला जो हम लोग कर सकते हैं वो है ट्रेपेजियम का, बिकॉज़ सी इट इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम आल्सो, ये पैरेलल साइड्स हो जाएंगी और ये नॉन पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ये और ये, तो वी कैन यूज द area of trapezium also। तो for third equation of motion we will use the area of trapezium, okay। now do the second equation of motion, pause कर लीजिए वीडियो को और वहां से यहाँ से नोट कर सकते हैं, okay। now for third equation of motion what we will do, third equation of motion के लिए भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक ऐसे ही जैसे अभी लिखा था, यहाँ 3 लिखा, यहाँ लिख दिया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। सेम थिंग, अब डिस्टेंस लिखना है, तो s इज इक्वल टू, दैट मींस s इज द डिस्टेंस, है ना, पिछले बार हम लिख चुके हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो s क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ OABC, ठीक है। तो
ऐसे ट्रेपेजियम की शेप में लिख लिया एंड नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपेजियम. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, यस, हाफ sum of parallel side into height. Yes, see, area of trapezium is equal to half sum of parallel sides into height. Okay, now sum of parallel sides. See, इस ग्राफ में पैरेलल साइड कौन कौन सा आ रहा है इस फिगर के लिए? OA और BC. ठीक है, लिख लेते हैं. OA, देखो ये एक पैरेलल साइड हो गया और इसके सामने ये पैरेलल साइड है प्लस BC इनटू हाइट. हाइट देखो ये पैरेलल साइड के बीच की जो हाइट है ये ले लो, OC. इट इज OC. नाउ पुट द वैल्यू फॉर OA, OB एंड OC. क्या क्या वैल्यू मिल रही है ग्राफ से? C, OA इज, देखो यहां पे क्या है OA? इट इज U. यहाँ पे लिख लिया U प्लस BC. देखो BC तो पूरी हाइट है ना, दिस इज इक्वल टू V. देखो ये जो BC है यहाँ से यहाँ तक ये OE के इक्वल है, तो E पे कितनी हाइट आ रही है? जो वेलोसिटी हो कितनी है? V है, तो ये हो गया V into OC is T. Okay, this is S. Now see what is the third equation of motion. Third equation of motion क्या है? It is V square equal to U square plus 2AS. तो जरा देखो ध्यान से, इस पे कहीं भी T है? टाइम इंट्रोड्यूस किया है इस रिलेशन में? नहीं है ना. जब टाइम नहीं है तो दैट मींस यहां पे टाइम नहीं आना चाहिए. तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ t ना. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v is equal to u plus at. यहां से t की वैल्यू निकाल लो, v minus c upon a. see, you will use this value of t in the place of this t. ये t की जो वैल्यू है v minus u by a यहां पे पुट कर लेनी है. ओके, नाउ पुट इट s is equal to half, ये v plus u और ये हो जाएगा v minus u. क्लियर? t की वैल्यू v minus u upon a, ये पूरी वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी. ठीक है, देखो यहां डिनोमिनेटर में 2 and a, 2 और a मिल रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो इसको इधर भेज दो s के साथ. तो 2as is equal to, you can see it is a plus b and a minus b form ना. इसका जो फॉर्म है it is a plus b in one bracket and a plus a minus b in another bracket. What you can write? A square minus b square ना. We will use the same relation here. Then it will be v square minus u square. See, this is the third equation of motion and we can arrange it like this also. V square is equal to u square plus 2as. So we have proved all three equations of motion with the help of graph. That means graphical proof we have done, but one more proving we have. It is known as algebraic method. So in next video we will try to do these all three equations of motion, proving of equation of motion by another method which is known as the algebraic method. Okay, thank you.